Hi, beautiful beings and beautiful bodies. How are you? Everybody, put yourself on mute and come on the camera because that's respective to see the coach and take the class. When we are doing so much, so beautiful contribution, it's very important that we connect. I do a lot of webinar series with my clients, and while sitting at your home and the comfortable zone, you can have a learning about relationships, about male and female psychology. My webinar, that's name is He and She. A part of that, I do the class on self-love called Divorceless Relationship. Going Beyond Destruction, we had the few days back a free call on that. This is something Series is doing for the contribution that you can understand that what all we need to imbibe with more and more in this quarantine and lockdown period, and how that can be an opportunity for you rather the problem. So we see the life out of our, there is a lot of problem. And if we how we can create and build our emotional and mental immunity so wide that instead of looking the things as a problem, we can look at as an opportunity. Are we all ready for that? Yes. Because new world is coming up and showing up. Okay, there is that's the kind of earth is changing right now. Not only earth is changing, it's a time where stars are changing, things are changing around, and the nature is changing. Nature is saying something to us from last many years. If you see some of the other things start happening on the earth, these things were not so prominent. I'm saying that these things were there, but it were not so one after the other. Have you seen everybody? Come on. One Yes. after the other, something happened. In Delhi specifically, I talk about there was dangas, and as dangas got stopped because of corona. So I was enrolled in a program for these dangas because there are many people were going through from trauma and drama. So there was some government society was calling me that you can come and probably coach these people. So I had devoted my 3 hours in a day to that. So first day I just went there, and the second day the corona started, and it was all like even the more trauma things came. So it gave me inspired to start this session online, and more is 80% of the time I'm online and doing the things. So take the benefit. First message I would like to give: always build your emotional and mental immunity. When we talk about living the life with ease, joy, and glory, do you see maximum of the human being are not connected with the ease within themselves, joy within themselves? This is something in this reality, it has been taught to us. If we have to live happy, we have to do something big. We have to create a lot of money. We have to do, I'm not saying we are not, we have not to do that. Even I'm very excited looking the good number in my bank account. I'm equally excited to contribute to my clients or to my people, because that's my first love, that's my passion. So whatever you do, if you do with the passion, but I know that many people says that, ma'am, जो सर्वाइवल मोड है उसको पूरा करने के लिए नहीं होता तो पैशन कब जिएंगे, टाइम ही नहीं मिलता. And to all those people I'm giving the repeated message that this is the time to live your passion. And you don't know, my dear friends, if you live your if you live your passion in this 1.5 month, your whole life gets changed, and your passion become your profession. When your passion become your profession, you create very different results in life. Do you agree? The life becomes ease, the life becomes great happiness. मालिनी इज रिक्वेस्टिंग मी टू स्पीक इन हिंदी, तो मैं कोशिश करूंगी मालिनी कि मैं जितना हो सके हिंदी में बात करूं. सो नमस्कार. मेरे को बहुत अच्छा लगेगा हिंदी में बात करने के लिए, लेकिन क्या है, बहुत सालों से प्रैक्टिस छूट गई, पर मैं कोशिश करूंगी. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारी जिंदगी अगर प्रॉब्लम में ना रह करके पॉसिबिलिटी में रहे तो क्या आप लोगों को चलेगा? अगर इस क्वारंटाइन पीरियड के बाद अगर जिंदगी थोड़ी और ज्यादा हैप्पी हो जाए तो क्या आप लोगों को चलेगा? अगर इस चिंता में रहने की बजाय कि हम इसके बाद क्या करेंगे. Sagar is saying both the languages. I'm trying and speak. Okay, so I'll try and speak Sagar, but otherwise bear with me. So अगर हम इस क्वारंटाइन पीरियड की अगर हम चिंता ही ना करें, तो ऐसा कब होता है? जब हम अपनी इमोशनल और मेंटल इम्यूनिटी पे काम करते हैं. तो पूरे देश में ये चीज चल रहा है, अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाओ. लेकिन मेरा ये मानना है, अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा सकते जब तक आप अपनी मेंटल एंड इमोशनल इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाते हैं. क्योंकि फिजिकल इज नथिंग, इज जस्ट हाउ योर माइंड इज गेट वायर्ड बाय. अगर किसी का माइंड वायर्ड है रेगुलर योगा करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए, तो आप करेंगे ही, राइट?
अगर आपको हैबिट हो गई है, अगर आपके इमोशंस उस तरह से वाइब्रेट करे कि यस मुझे योगा अच्छी लगती है, मुझे क्लीन फूड खाना अच्छा लगता है, मुझे लॉट ऑफ पानी पीना अच्छा लगता है, सो आप काम करेंगे ही। तो कैसे, मेरा मकसद है कि हम एक इम्यूनिटी डेवलप करें अपने अंदर, कि हम लाइफ ईज, जॉय एंड ग्लोरी से ही शेयर करें। सो कल मैंने एक टूल बताया था, नेवर लिव एंड बाय स्टोरीज। आप कभी भी जिंदगी में ना स्टोरीज को, कहानियों को ना बाय करें, ना स्टोरीज में रहें। मेरा रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो कि ऑफलाइन है और सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि ये क्लास है, इसके अंदर पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। एंड आप विजिबली हाँ, प्लीज, क्लास लाइव होगी तो क्या आप अफोर्ड कर सकते, क्या आप अफोर्ड कर why सकते? I wanted her to. मुझे मान लिया आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है, कट कट के आ रही है, लेकिन हाँ आ रही है। अच्छा, वाई मैंने इनको यहाँ पर बिठाया है अपने पास में, और मैं चाहती हूँ कि ये आपको सुने, क्योंकि कल भी हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था स्टोरीज को रिलेटेड। और पूरा दिन और कुछ नहीं होता, सिर्फ बातें बातें और कोरोना की बातें। इसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया, हमारे घर के आसपास कितने लोग निकले हैं, और वही चीजें ना दिमाग में चलती रहती है, डेवलप होती रहती है। तूने क्या पकाया, मैंने क्या खिलाया, बस स्टोरीज स्टोरीज पूरा दिन, और स्टोरीज के अलावा कुछ नहीं चलता। So I really wanted to listen to it, that थैंक यू। how it hampers our brain. मालिनी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आपने ये जो स्टैंड लिया है। हम क्या होता है, एक तो जिंदगी अपनी नहीं झेल पाते ज्यादातर ह्यूमन बींग्स, फिर हम जिस किसी के लिए भी स्टैंड ले, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर हो, हमारे खानदान वाले लोग हो, हमारे फ्रेंड्स हो, तो ये एक कंट्रीब्यूटर की निशानी होती है। जब हमारे दिमाग में आता है नहीं मुझे दूसरे लोगों के लिए करना है, तो आप एक कंट्रीब्यूटर है। तो आपका एक हेल्दी स्टेट में होना, आपका एक हैप्पी स्टेट में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं छोटा सा कल के कॉन्वर्सेशन में बात करूंगी। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस मालिनी, कि नेवर बाय एंड टेल स्टोरीज। कभी भी जिंदगी में, हमारी इस कॉल का मकसद क्या है, जो नए लोग आए, कि आप एक नया वे ऑफ बीइंग लाइफ में डेवलप करें, उसको टच अपॉन करें एटलीस्ट। मैं एज अ लाइफ कोच बहुत सारी लाइव क्लासेस, वेबिनार्स कराती हूँ। अगर उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको मेरी पर्सनल कोचिंग सेक्टर में, सेगमेंट में आने का मौका मिलता है। नहीं तो जो मैं आपसे टूल्स कह रही हूँ वो लाइफ बिल्डअप करने के हैं। हमें इस रियलिटी में कभी भी नहीं सिखाया गया कि स्टोरी में मत रहिए, रेदर हमें एक्नॉलेज किया गया है। हम जब छोटे होते थे, और मुझे भी याद है, जब मैं छोटी बच्ची होती थी तो मैं कम से कम अपने ग्रैंडफादर को कहती थी, आज तो मुझे 5 स्टोरीज बताना, उससे पहले मैं नहीं सोऊंगी। तो चाहे मैं एक में ही सो जाऊं कहानी सुनते सुनते, बट मेरी एक इनबिल्ट आदत हो गई स्टोरी को सुनने की। और स्टोरीज कहीं ना कहीं लुभाने भी लगती हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कोई ना कोई स्टोरी हमें बताते हैं। हमारी अगर हिस्ट्री की किताब आप उठा के देखिए, 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में इंडिया में, तो हिस्ट्री में पूरी स्टोरीज भरी हुई है कि किस सन में क्या हुआ था, ये हुआ था। दे वर अ नॉर्मल पीपल लाइक अस। ये जो बाबर, अकबर, ये सब, ये बल्कि राजा थे, महाराजा थे, एक वेल्थ को जी रहे थे। और क्योंकि उन्होंने कहीं से पैसा उठाया, किसी का पैसा लिया और उसके ऊपर अपनी लाइफ जी, और हम उनकी स्टोरीज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम उनकी स्टोरीज को उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिना सोचे कि वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट कैसा करता है। इवन जब मूवीज आप देखने जाते हैं, वो स्टोरीज आप पे कितना इम्पैक्ट करती है, राइट? तो ये जो सब कुछ चल रहा है आपके सराउंड में, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं, कि यहाँ इसकी डेथ हो गई, वो हो गई। अब स्टोरी, फायदा ये है, एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि किसकी जिंदगी में क्या हुआ हमें उसकी डिटेलिंग नहीं है। कोई कोरोना से डेथ हो गया, वो कितना इन सब रूल्स को फॉलो कर रहा है हमें नहीं पता, बट हमें तो ये पता रह गया कि 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर में एक डेथ हो गई, और वो हम हॉरिफाइड हो गए उस चीज से। ऐसा जिंदगी में हमेशा होता है। हमने किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ सुना, हमें नहीं पता उस इंसान ने अपनी जिंदगी में अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस का सी और ए भी नहीं पढ़ा, और हम उससे ज्यादा कॉन्शियस है, बट क्योंकि हमारी स्टोरीज में रहने की आदत है तो हम फियरफुल हो जाएंगे। यस सुनो, Absolutely yes. अगर स्टोरीज करती क्या है, अब आप कहोगे मैं स्टोरीज के बारे में क्यों बात, स्टोरीज आपको लाइफ में कंक्लूजन्स देती है। स्टोरीज आपको लाइफ के अंदर कंक्लूजन देती है, आपको प्रोजेक्शन देती है कि लाइफ ऐसी है, और हम कुछ नहीं करते, नया क्रिएशन हम करते नहीं, हम पास्ट कंक्लूजन और प्रोजेक्शन से अपनी लाइफ जीते हैं। और वहां से लाइफ बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, वहां से लाइफ बहुत लिमिटेड होती है, वहां से लाइफ सर्वाइवल मोड होता है। क्यों सर्वाइवल मोड होता है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की लाइफ सर्वाइव के लिए नहीं बनी है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ थ्राइविंग के लिए बनी है।
कोई बहुत पैसा कमा के थ्राइविंग फील करता है, हैप्पी फील करता है, कोई बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन करके करता है, कोई अपने रिलेशनशिप्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप्स क्रिएट करके करता है, किसी को नई नई चीजें एक्सप्लोर करके मिलता है, किसी को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करके मिलता है, किसी को कंट्रीब्यूट करके वो मिलता है। लेकिन कुछ भी आपका मकसद हो लाइफ के अंदर, वो वाली बात नहीं है। बात यह है कि आप स्टोरीज में चेक करिए, आप कितना स्टोरीज में इनबिल्ड रहने की आपको आदत है। अगर आपकी स्टोरीज में रहने की आदत है तो आपको रात को नींदें आना बंद हो जाएंगी, स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, एंजाइटी होगी, पैनिक अटैक होगा, डिप्रेशन भी हो सकता है। हाउएवर आप उसको माने या ना माने, रिसर्च सेज दैट हर 10 में से 7वां इंसान डिप्रेस्ड है। कोई 80% लेवल पे है, कोई 70%, कोई 60 लेवल पे है। अगर हमारे फाइनेंसेस उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं जैसे करने चाहिए, तो हम एक तरह से परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर होते हैं। वो एक तरह का डिप्रेशन ही होता है। रिसर्च सेज दैट सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है पुरानी स्टोरीज को होल्ड ऑन करने के लिए, कि 1997 में 1947 में 1978 में किसी सन में मेरे फादर ने ये करा, मेरी मदर ने ये करा, या XYZ पर्सन ने ये करा। और आज भी क्योंकि हमें वो हैबिट है तो उन स्टोरीज को हम सुनाते भी हैं। खासकर पेरेंट्स ऐसी स्टोरीज अपने बच्चों को बताते हैं कि सुनो, तुम्हारे जमाने, तुम्हारी एज में हम ऐसे ऐसे थे, हमने ये करा। हमने अगर अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ को 30% भी सक्सेसफुल बनाया तो हम वो स्टोरीज अपने बच्चों के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं ना। वो जो बच्चा बड़ा हुआ वो स्टोरीज को लेके ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसको नया वे ऑफ बीइंग पता ही नहीं है। तो अपने लेवल की जो सक्सेस होती है, जो एक हम अपनी Deepshika, 1 minute. My niece is there who is 16 years old. Can she hear it? she can hear it and she can, I would like to see her also. I think Yeah. she's logged in from your login. Yeah, I Yeah, would yeah. like to see them No, also. she is sitting with me. Can you see her? I can see her. Hi, how are you? Good. Fine. So, hi. So I am here talking about that we live those stories. We tell very interestingly those stories to our kids. हम अपने बच्चों को बड़ी इंटरेस्टिंग वे से बताते हैं, बिना सोचे समझे कि उन स्टोरीज का इम्पैक्ट क्या होगा। तो नेवर टेल एंड बाय स्टोरीज, क्योंकि जिंदगी एक पानी की तरह बहनी चाहिए। आपकी जो जिंदगी के एक्सपीरियंस है वो आपके थे। ये जो एक राइट है ना पेरेंट्स वाला, या एक बच्चों वाला भी एक राइट होता है, बिकॉज आप मेरे पेरेंट्स हो तो मेरी बात सुनो, बिकॉज आप मेरे किड हो तो मेरी बात सुनो। क्योंकि हम भी बना लेते हैं ऐसे आइडियाज की, बिकॉज हम किसी के बच्चे हैं तो जैसा वो चल रहा है वैसा हमें फॉलो करना चाहिए। इस तरह के प्रोजेक्शन और कंक्लूजन को फॉलो करके मैं ये कहूंगी आप थ्राइविंग लाइफ नहीं क्रिएट कर सकते। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मैंने अपनी जिंदगी में स्टोरीज से वर्कआउट किया होता तो मेरी फैमिली में तो सारे बिजनेसमैन है, लाइफ कोचिंग तो दूर दूर की बात है। बट आई फॉलोड माई अवेयरनेस। आप अपनी अवेयरनेस तब तक फॉलो नहीं कर सकते जब तक आप लोगों की बाई की हुई स्टोरीज में रहेंगे। आपने देखा बच्चे कुछ करना चाहते हैं पर पेरेंट्स उनको कहते हैं ये मत करो, तुम अच्छे पेंटर हो ठीक है, उससे हॉबी के लिए रखो, और अभी जाओ IAS के पेपर दो, अभी जाओ MBA सो एंड सो इंस्टीट्यूट से करो। क्योंकि हमने बाय स्टोरीज करी हुई है कि IIM से पढ़ा लिखा होना, XYZ से पढ़ा लिखा हुआ होना बहुत कुछ लाइफ में देता है। एंड IIM का ही कनेक्टिंग एक इंस्टीट्यूट है XLRI जमशेदपुर। किसी ने सुना है? सबने सुना होगा, आई एम श्योर। टॉप रैंक है और मैं वहां से पढ़ी लिखी हूँ। मैंने अपनी MBA वहां से करी, MIT से करी, फिर वहां से करी। उसको करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई और स्टोरीज हमने बाय करी हैं वो आपको लिमिटेशंस ही दे रही। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो स्टोरीज आपने लाइफ में इकट्ठी करी है वो आपको कुछ दे ही नहीं रही, उल्टा आपको लिमिटेड बना रही है। और खासकर ऐसे बच्चों के लिए, अनिल जी के साथ देयर इज अ किड सिटिंग राइट, सो आई वुड से दैट खासकर टीनेज का जो एक ग्रुप होता है उनके लिए तो बहुत ही वर्स है अगर आप स्टोरीज बाय करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो स्टोरीज क्यों नहीं बाय करना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर स्टोरीज जो होती है ना वो वर्स होती है जो हम बाय करते हैं। हैप्पी स्टोरीज को हम बहुत कम रिटेन करते हैं। आपने कभी किसी को सुना है कि 1997 में ये हुआ था, बड़ा अच्छा हुआ था और बड़ा मजा आया था? ज्यादातर जो स्टोरीज का बेस होता है वो नेगेटिव होता है और वो दुख होता है उसमें। एंड समवेयर हम किसी ना किसी को उसके लिए जिम्मेदार यानी कि ब्लेम देते हैं। किसी के साथ कुछ शिकायत है जिसमें हम माफ नहीं कर पा रहे उसको, हम उस स्टोरी का रिपीटेशन करते हैं। जब भी हमें कोई लिखता है, कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा दुख समझ सकता है लाइफ में, चाहे वो कोई फ्रेंड हो कोई भी हो,
और लेट मी टेल यू, वो स्टोरीज दूसरे को बताने से पहले अपने आप से आप हजारों बार बोलते हो। तो अगर मैं किसी और से, मेरा कोई फ्रेंड है, लेट्स से मान ली मेरी फ्रेंड है, उसको बताने से पहले मुझे पता है वो अंडरस्टैंड भी मुझे करती है, बताने से पहले कहीं ना कहीं वो स्टोरी मेरे जहन में मैंने 1 लाख बार रिपीट करी है, और उसके बाद मैंने वो स्टोरी उसको मैं बता रही हूँ। ऐसे ही कईयों का ब्रेकअप हो गया, जरूरी नहीं है पेरेंट्स से इम्प्लांटेड स्टोरीज होती हैं, बचपन की होती हैं, या कई बार बचपन में यूजुअली 16-15 की एज तक हमारे पास 3 ऐसे इंसिडेंट लाइफ में होते हैं जो आज भी विविडली सबको याद होते हैं, और वो रोंगटे खड़ा कर देता है। मे बी कुछ भी हो सकता है, किसी ने आपको डांटा, किसी टीचर ने डांटा, पेरेंट्स ने डांटा, किसी रिश्तेदार ने डांटा, और किसी चीज पे डांटा जिसमें आपकी गलती नहीं थी, या उन्होंने सुधारने की कोशिश करी। अब आप उसको उस तरह से इंसिडेंट को नहीं समझ पाए, और वो स्टोरी आपने बना ली, और उसके बेस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बना लिए। इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। इम्पैक्ट इतना होता है कि आप अपनी पूरी लाइफ उस एक फेक चीज के ऊपर डिफाइन करते हो। इवन कई बार आई हैव सीन, मेरी प्रैक्टिस के अंदर मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स ने किसी पर्टिकुलर रिश्तेदार के लिए एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया, और उससे वो रिसीव नहीं कर पाए। उनके रिलेशनशिप्स भी जो होते हैं स्टोरीज की वजह से वर्स होते हैं। लाइक व्हेन दे आर, या तो उनकी मैरिजेस नहीं होंगी, या ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होंगे, या वो शादी के अंदर अगर आ भी गए तो कंसर्न्स या डिवोर्सेस होते हैं बहुत। तो स्टोरीज बहुत बहुत खतरनाक चीज है। नेवर बाय एंड टेल स्टोरीज। दूसरी तरह की स्टोरीज फॉर्म मैंने बताया बॉलीवुड के अंदर, खासकर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, इम्प्लीमेंटेड रिलेशनशिप्स। तो आपने हर बॉलीवुड की मूवी देखी कि हीरो हीरोइन मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, फिर कुछ ड्रामा होता है, और वो ड्रामे के बाद ही उनको सक्सेस मिलती है। इन रियल लाइफ में भी मैंने देखा है, हीरो हीरोइन जो होते हैं वो ड्रामे को तलाश करते हैं। आजकल अगर कोई और ड्रामा नहीं है तो वो अपने आप में ही क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने देखा हो तो आजकल की फिल्म मूवीज के अंदर भी कोई विलन नहीं होता जो हीरोइन को उठा के लेके जाता है, हीरो ही विलन होता है, हीरोइन ही विलन है। मतलब हमारा जो दिमाग है, जो स्टोरी क्रिएट कर रहा है, जजमेंट क्रिएट कर रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर रहा है, वो ही सबसे बड़ा विलन है। यानी कि हम अपने आप को एक स्टोरी बता रहे हैं जो कि फेक है, राइट? सो ऑल द स्टोरीज विच यू आर लिविंग इन योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास में आपने जितनी भी स्टोरीज को आप जी रहे हो, क्या आप उनको लेट गो ऑफ कर सकते हो, डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट कर सकते हो? एक ब्यूटीफुल टूल है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट। क्या आप उन स्टोरीज को डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट कर सकते हो? जस्ट आपको ये देखना है, अपने अंदर चेक करिए यस एंड नो, क्या करना चाहते हो? अपने आप से पूछिए, क्या मैं उन स्टोरीज को डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट करने को तैयार हूं? क्योंकि किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब हम उन स्टोरीज को लेट गो ऑफ करने को तैयार है। उसके अंदर एक जर्नी हो सकती है, लेकिन वो स्टोरीज आपको कुछ ऐसे इम्पैक्ट दे रही हैं जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल तो नहीं बना सकता। आर यू गेटिंग मी? सो इससे कनेक्टेड एक और टूल है, नेवर बाय एंड टेल स्टोरीज। डोंट बी इनटू द फॉर्म स्ट्रक्चर, डोंट फॉलो द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, डोंट क्रिएट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स। तो एक तो हम क्या करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं जिससे अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और हमने कई फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स अपनी लाइफ में बनाए हुए। जैसे कि अगर आप वुमेन हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा घर में, अगर आप मैन हो तो आप क्राई नहीं कर सकते, अगर आप इस कम्युनिटी से हो तो आपको ऐसे फंक्शन करना चाहिए, उस कम्युनिटी से तो ऐसे फंक्शन करना चाहिए। तो अगर आप देखो, ये अपनी जिंदगी में भी हमने बहुत सारे फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स बनाए। मोर देन अ प्रिंसिपल, हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि मैं एक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या हुआ, मैं एक एंग्री इंसान हूँ। एक तरह का फॉर्म बना लिया आपने अपने आप को, आपने कुछ मान लिया अपने आप को जो आप नहीं है। अगर आप देखेंगे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करेंगे या कोचिंग प्रोग्राम्स करेंगे तो आप देखेंगे आप वो नहीं हो, आपने मान लिया है अपने आप को वैसे। मैं एक मैं आई डोंट हैव अ सेल्फ वर्थ, या मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, या फिर आई एम अलोन, लोग मुझे प्यार नहीं करते। ये फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं। क्या फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है? मुझे कोई प्यार नहीं करता, आई एम अलोन, मुझे अपना काम खुद करना पड़ेगा, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है लाइफ में, आई एम ऑल अलोन, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, राइट? इस तरह की चीजों को अपने अंदर बाय करना एक तरह का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर होता है। और फॉर्म एंड लाइक आपकी जो लाइफ है अगेन वो हो गई लिमिटेड स्क्वीज। अगर मेरे पास फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, मैं हमेशा उस फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगी। सो डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट अगेन। हाँ प्लीज सागर बताइए। सागर, कैन यू कम ऑन कैमरा बिकॉज आई people are on camera. If you're in receiving, actually there is a bandwidth problem. Actually there is a bandwidth problem. I'm using my mobile network, so there can be a bandwidth problem.
सो मेरे को ये Sure. पूछना है, जैसे हम क्या, जैसे अभी आपने कहा कि आप स्टोरीज बाय मत कीजिए. हेलो, कैन यू हियर मी? या मैं सुन रही हूँ आपको. हाँ हाँ, जैसे हाँ अभी आई आपने कैन कहा कि कंप्लीटली. स्टोरीज बाय मत कीजिए. अब जैसे हम किसी पार्टी में गए या किसी गेट टुगेदर में गए, वहां पे किसी ने कोई स्टोरी बताई, वो हमने आके अपने बच्चों को बताई. और या फिर हम कोई मूवी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कोई मूवी देख के आते हैं, तो मूवी में तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हमने लिंकिंग एंड एसोसिएशन भी कर लिया उसके साथ. कहीं ना कहीं हम उस सीन के साथ, पर्टिकुलर इवेंट के साथ, उस मूवी के साथ हम अपने आप को लिंक भी कर लिया, तो वो हमारे अंदर और भी ज्यादा वो आ जाती है, मतलब उसकी छाप छूट जाती है. तो कैसे हम एनर्जी उसको आ ओवर, जाती हाँ हाँ, एनर्जी भी आ जाती है, या हम उसको उससे बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेट भी करते हैं. है. रिलेट करते हैं. हाँ प्रोजेक्शन, कंक्लूजन करते हैं, हाँ प्रोजेक्शन करते हैं. हाँ इसे कहते हैं कि लाइफ को वैसे प्रोजेक्ट करना. वो है नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हाँ, कि हैं. ये, हाँ, And ये थी. अब जैसे कई कई स्टोरीज, कई मूवीज हैं जो हमारे को समझ नहीं आती कि भाई ये ऐसे नहीं होता, ये तो सब फिक्शन है, या सब कुछ ऐसा ही है, कहानी है ये वो तो. और कई ऐसे होती है कि जैसे थ्री इडियट्स है. थ्री इडियट्स हमारे को लगता है कि क्योंकि हम भी एक मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, वहां पे भी ऐसे ही होता है, तो ये एवरीथिंग इज करेक्ट. तो इस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने, आपने बोला कि यू डोंट बाय द स्टोरीज, तो हमने अब स्टोरी तो बाय कर ली, बट हाउ टू ओवरकम दिस? बिकॉज कहीं ना कहीं उसका उसका इफेक्ट हमारी पर्सनल लाइफ में भी पड़ रहा है. आपकी कहीं ना कहीं नहीं, 100% है. 100% फाइनेंसेस पे है, 100% है. तभी तो मैं कह रही हूँ डोंट बाय एंड लेट गो ऑफ द स्टोरीज. हम्म. राइट. अच्छा अब अच्छा आपने अच्छा बात अच्छा. करी फिल्म इंडस्ट्री की, तो उनका तो मकसद ही है कि जब तक वो आपको रुलाएंगे नहीं, आपको पिक्चर अच्छी कैसे लगेगी और आप उसको दोबारा और क्यों नहीं लिखेंगे. वो बिजनेस है ना. वो स्टोरी नहीं नहीं, जब तक कर जाती वो है. वो वो तो स्टोरी आपके कोई. इमोशंस के साथ प्ले कर जाएंगे अच्छे खासे. हाँ. और हमको पसंद, मैं आपसे यही बात बोल रही हूँ कि ये हम्म एक, चाहे कोई मार्केटिंग टूल भी देख लो, कोई एड भी देख लो, सिर्फ एक मूवी हम्म नहीं, 2 मिनट की एक एड भी आपको रुलाती है. अरे यार देखो, हम्म. बजाज के आपको याद है एक बल्ब होता था, उसमें एक बुढ़ा था, मैं गोली खा के जीता हूँ. हाँ, तो गोली स्टोरी खाकर जीता हूँ. रेजोनेटिंग. हाँ आज भी वो बजे तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं हमारे वो, जमाने की. लाइक आई वाज हाँ, वेरी टाइनी, कैडबरी का छोटी सी ऐड आता था, क्या बच्ची. स्वाद है जिंदगी का, वो लेडी भागती हुई जाती थी क्रिकेट ग्राउंड या में. या कई ऐसी एड होती है जिसमें वुमेन को कुछ दिखाते हैं वो, और हम प्रोजेक्ट करते हैं कि हम वुमेन है तो हमारी यही पावर है, या हम मैन है तो हम्म हमारी यही पावर है. सर हम्म वो सिर्फ आपकी जो स्टोरीज होती हैं या उनके जो इम्पैक्ट है या फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ वहां तक नहीं होते हैं, आपकी पूरी लाइफ को शेप करते हैं. हम्म. तो मैं, ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है. मैंने ये टेक ऑन करा है कि मैं स्टूल के जरिए अभी टू को बता रही हूँ. हम अगर, मैं अपने जब क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ ना, स्टोरी के पीछे क्या है, आगे क्या है, हर एक चीज के ना का क्या वो देखते हैं. उसको निकलना, वहां से निकलना अपने आप में एक जर्नी है. मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो जर्नी, उसको जीना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर हमको, एक पहली बात तो यही चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी स्टोरीज में मत इंडल्ज कीजिए. जैसे एग्जाम्पल मैं अपने साथ बताती हूँ आपको, अगर आपको एग्जाम्पल आता है समझ में. आजकल हर न्यूज एक ही बात कर रहा है. आपको दिख रहा है पूरी अर्थव्यवस्था इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की एक ही बात कर रही है. दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. कहाँ रॉबरीज कुछ ही होता था, सब बंद हो चुका है. सिर्फ कोरोना, एवरीवेयर इज कोरोना. 100 न्यूज आती है, 100 में 100 कोरोना की न्यूज. राइट. तो हमको एक चीज पता करना इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी सफाई करनी है, और हमको ये देखना है नंबर्स कितने बढ़ गए और हम केयरफुल रहें. दैट्स इट. उसके अलावा हम पूरा इंटरेस्ट लेके उसको देखते हैं. तो पहली बात तो न्यूज हो गया, टीवी हो गया, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. आज 8 साल से मैं टीवी नहीं देखती. मैं नहीं देखती 8 साल से मैं टीवी नहीं देखती. अगर मुझे कोई सीरीज देखनी है तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, दूसरी जगह कोई एक्साइटिंग चीज देखनी है. बट ज्यादातर जितना स्टफ टीवी न्यूज चैनल में दिखाया जाता है, वो आपको एक अलग तरह से ब्लूप्रिंट दे रहा है. तो स्टोरीज आपके इन्फॉर्मेंट स्ट्रक्चर, आपके ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं. उस ब्लूप्रिंट से हम अपनी जिंदगी जीते हैं. तो मैं तो आपको सिर्फ एक चीज डिस्टिंक्शन बता रही हूँ, जो मैं बताती हूँ. नेवर बाय एंड टेल स्टोरीज. नो फॉर्म, डोंट क्रिएट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स, बिकॉज फॉर्म एंड स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी क्रिएटेड हो गए हैं हमारे साथ. जो भी फॉर्म स्ट्रक्चर स्टोरीज हम 16 साल तक की लाइफ में देख लेते हैं, हम पूरी जिंदगी जीते हैं. ओके. until unless हम कॉन्शियस एफर्ट ना करें. जब मैं आई वाज अराउंड 17 ईयर ओल्ड, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आई, और जैसे जैसे मैंने लर्न करना शुरू किया, मुझे सब कुछ पता लगता गया. मैं एक तरह की स्टोरीज, एक तरह की प्रोजेक्शन जी रही थी, जहां से मैं अपने आप को कुछ और समझ रही थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट पेरेंट्स को गलत समझा और कुछ भी समझा. ये सबके, हम सबके साथ होता है. ये बिल्कुल नॉर्मल
नॉर्मल बातें हैं, को गलत समझना, किसी रिलेशन को गलत समझ लेना, उनको फॉरगिव नहीं करना, अपने आप को फॉरगिव नहीं करना, कुछ इमोशनल मेंटल फिजिकल होता है, उन निकलने के लिए दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो एक जर्नी है, वो हर एक इंसान को जीनी चाहिए, और यही ह्यूमन लाइफ का मकसद भी है। ह्यूमन लाइफ में जो इम्प्लांट्स दिए हुए हैं कि कैसे आप उनसे उठो। जब हम बात करते हैं वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की, यूनिवर्स की, तो वो मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके बताऊं तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 300 से ऊपर न्यूट्रल होती है। और हमारी 80% दुनिया, जहां पर कोई इंसान स्टोरीज बाय नहीं करते, फ्री फ्लोइंग लाइफ जीते हैं, हैप्पी लाइफ जीते हैं, उनके पास लाइफ का पर्पस है, वो 300 से ऊपर होता है, ईज, जॉय, ग्लोरी एंड एवरीथिंग। 300 से नीचे 80% वर्ल्ड उस कैटेगरी में आता है, 20 to 300। तो इसका मतलब सभी जहां वो डिप्रेशन में जी रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैं सिर्फ जैसे डिप्रेशन की आपने, बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ डिप्रेशन की बात नहीं कर रही, कोई एंजाइटी में होगा, कोई बोलेगा, कोई हाँ नहीं हाँ बोलेगा। हाँ, मतलब कोई बोलेगा कोई नहीं बोलेगा बेसिकली, तो मतलब डिप्रेशन हो नोइंगली और जरूरी नहीं है। हाँ, नोइंगली एंड अननोइंगली, बट दे आर इन सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर और समथिंग लाइक दैट। स्लीपिंग डिसऑर्डर है, मनी इनकम लो है, रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे, या तो रिलेशनशिप्स को ताक पे रख के पैसा कमा रहे, या पैसे को ताक पे करके अननेसेसरी रिलेशनशिप्स को वेटेज दे रहे। स्लीप डिसऑर्डर है, समझ ही नहीं पा रहे पर्सन हमारे लिए सही है कि गलत है, डिवोर्सेस होते जा रहे हैं लोगों के। सो ये सब कुछ जो है एक इम्बैलेंस है, एक नेचर को इम्बैलेंस करके हमने भी अपने नेचर को, अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपने बीइंग को डिसबैलेंस कर दिया। ये सब आया कहाँ से? ये सब प्रैक्टिस से आया, कल्टीवेट हुआ है। तो होता क्या था पहले जमाने में ना, इन सब प्रैक्टिस के लिए नेचुरल रिसोर्सेज होते थे, जैसे योगा, मेडिटेशन। वो 8 साल की उम्र से लोग करना शुरू करते थे। मैं एकदम लेटेस्ट की बात नहीं कर रही, 200-300 साल पहले तक। वो इवेंचुअली पिछले 100 इयर्स में तो बिल्कुल खत्म हो गया। नाउ दुनिया फिर से चेंज हो रही है। इफ यू लुक एट डिक्लटरेशन हो रहा है, इतने ट्रांसफॉर्मेशन कोचेस वगैरह सब क्यों आ गए? जरूरत है। तो आपकी मैं एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बताती हूँ आप सबको आज की। पूरी दुनिया की जितनी थेरेपीज हैं, जितनी कोचिंग है, सब ऊपर से बताएंगे आपकी फ्रीक्वेंसी जब तक 300 से ऊपर नहीं है, आप स्ट्रगलिंग मोड पे है लाइफ को लेके। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाएगी, बिजनेस नेगेटिव हो जाएंगे, बिकॉज बहुत सारी प्रोजेक्शंस है। इंपॉर्टेंट ये है कि हर इंसान को उन स्टोरीज से बाहर आना है। ये सेल्फ जिम्मेदारी और चॉइस है। और ये स्कोर आपका 300 है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा आपको? तो एक कोच के साथ काम करके आप बता देते हो। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जो इस कॉल पे हैं मेरे, एंड दे हैव, अनिल जी इज देयर, सुशील जी इज देयर, दे नो दैट, दे नो इट वेरी वेल, दे आर लिविंग अ जर्नी विद मी। तो उनको पता है कि हमारा पहले ही स्टेट था। और अनिल जी अभी जिन्होंने बात की उनके साथ एक बच्ची बैठी है, तो दे हैव बीन जस्ट टेलिंग मी कि अभी हम सिर्फ उस स्टेट में रहते हैं, और जो एक फंसा हुआ पैसा है कई बार वो भी आ जाता है। many of the clients are telling me इस लॉकडाउन पीरियड में उनको कॉन्ट्रैक्ट्स आए जो कभी नहीं उन्होंने फाइनेंशियल अबंडेंस एक्सपेक्ट करी। ऐसे कन्वर्जन्स हो रहे हैं लाइफ में। देखिए मैं आपको एक बताऊं, सृष्टि का रूल है, हर चीज नेचुरली चलती है। आप अपने हार्ट को चलाने के लिए, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को इंटरनली चलाने के लिए कोई एफर्ट करते हैं? हार्ट को पंप करने के लिए, डाइजेशन सिस्टम को, या लिवर को, या बेसिकली एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। एक्सरसाइज तो अपनी फिजिकल बॉडी को फिट करने के लिए करते हैं, लेकिन जब से हमारा जन्म हुआ है तब से आज तक कुछ हम एक्स्ट्रा हार्ड एफर्ट कर रहे हैं कि ओ मेरी सांस रुक जाएगी, मैं कुछ इस पे एफर्ट डालते हैं, नहीं कुछ नहीं करते। वेरी गुड। तो आई एम सेइंग जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हैं यूनिवर्स में सब फ्री है, उसका कोई मोल ही नहीं है। लेकिन जो चीजें पैसे से खरीदी जा सकती हैं उस पे हम इतना हार्ड एफर्ट कर रहे हैं, वो बहुत इजीली है। मतलब पैसा कमाना इजी है, रिलेशनशिप बैलेंस करना इजी है, पर हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हुए हैं, क्योंकि वो एनर्जी जो अपने इमोशनल और मेंटल बैलेंस में लगानी थी वो भी हमने कहाँ खर्च कर रहे हैं? हम इन 2 एरियाज को फिक्स करने के लिए। ये 2 एरियाज जो है ये इफेक्ट है, ये कॉज नहीं है। ओके। कॉज इज ऑल अबाउट योर इमोशनल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ। आप जितना इन्वेस्टमेंट अपने इमोशनल मेंटल हेल्थ पे करेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही एक्सपेंसिव होती जाएगी। तो जितनी भी दुनिया के अंदर गिफ्ट चीजें हैं वो सिस्टम अपने आप काम करता है। मेरा कहने का मतलब है इस नेचर भी अपने आप काम कर रहा है। जब पेड़ पे पत्ते उगते हैं वो झड़ते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है जिसको इतना हार्डवर्क करना पड़ता है। क्यों? नाउ मेनी ऑफ द स्क्रिप्चर्स विल टेल यू डेस्टिनी है, कर्मास है, आपकी चॉइस है।
एक ह्यूमन Yeah. लाइफ ही है जिसमें आप ये सारा ज्ञान सुन के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ है हम उसमें नहीं करते क्योंकि हमें इजीली अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं। उस कंफर्ट Yes. जोन से कब पैसा क्रिएट हो गया, रिलेशन क्रिएट कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन हम उसको लूज भी कर देते हैं क्योंकि हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं है उस पैसे को और उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। बहुत सीधा सा रूल है, आप नेचर के साथ Correct. वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट कर लीजिए, उस पे काम करिए, कॉस्ट पे काम करिए, इफेक्ट अपने आप आएगा, आपके रिलेशनशिप अपने आप हो जाएंगे जब आप मेंटली एंड इमोशनली बैलेंस्ड हैं। बहुत सारे डिस्टिंक्शन है, एक नहीं है, मैं तो आपसे सिर्फ एक बता रही हूँ। डोंट बाय एंड लिव स्टोरीज इज अ वन, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इज द वन, क्योंकि हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर और स्टोरीज को बाय करके अपने इमोशनल और मेंटल को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करते हैं। आज का टॉपिक ये रेलेवेंस है सर कि हम क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज और फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। अब सिर्फ ये इम्पैक्ट नहीं है, जब लॉकडाउन खुल जाएगा मेरा बिजनेस क्या काम करेगा, मैं कैसे फंक्शन करूंगा, कैसे फंक्शन करूंगी, मेरा रेंट कहाँ पे होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीजें, जॉब एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा, तो ये बड़ी सारी चीजें हैं, वो चिंता कर रहे हैं लोग जिन कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं है। 80% of the world live in a temporary conclusions, temporary fix up, without understanding कि हम सब एक एक्सपेंसिव बीइंग है और लाइफ एंजॉय करने के लिए लाइफ है ह्यूमन बीइंग के लिए, सबके लिए बता रही हूँ मैं। एक भी ऐसा शख्स इस प्लैनेट पे नहीं है जो लाइफ एंजॉय करने के लिए ना हो, लेकिन हम देखते नहीं अपने आप को ऐसे। हम कैसे देखते हैं, यार अभी तो ये फिक्सअप कर लो, अभी तो ये एक्सपेंस फिक्सअप हो जाए, अभी तो ये बिल पे कर दे। रैट रेस, होल्ड ऑन, स्टॉप, लुक एट योरसेल्फ कि अंदर हमारे लिए क्या क्या क्रिएशन किया हमने अपने अंदर। वही इम्पैक्ट और वही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही कंप्लेटिव माहौल, वही कंप्लेंट्स, ब्लेम। स्टोरीज की मैं इसलिए बात करती हूँ, स्टोरीज के अंदर सबसे ज्यादा ब्लेम कंप्लेंट है। तो कम से कम मेरा एक एफर्ट, जब मैं आपको एक टूल यहाँ बता रही हूँ, तो अगर इस कॉल पे आधे से भी ज्यादा लोगों ने आज अगर इस लेसन को लर्न कर दिया, कम से कम वो थोड़े से कम ब्लेम में आ जाएंगे, थोड़े से कम कंप्लेंट में आएंगे, राइट? क्योंकि उनको इम्पैक्ट समझ आ जाएगा। कुछ लोग होंगे जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे, राइट? बट ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, बहुत कुछ है लर्न करने के, एंड आई वाज ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न दैट। जैसे जैसे मुझे आगे आगे कोचेस मिलते गए, मैंने बिल्डअप किया, और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भी ऐसा पर्सन जो उसका ब्लेम, कंप्लेंट, दुख लाइफ में, रिलेशनशिप नहीं हैंडल हो रहे, सडनली सेज इन द पीरियड ऑफ 1 month to 2 months, Dipshika, I'm living the life with complete ease, joy and glory, and I know that now I can do this, and I can create crores of money. That is something which excites me, because I don't come into the stories कि अभी ये लॉकडाउन होगा, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। Because I have no form and structure. I have no point of views about my clients. I have no point of view. It's a practice. It took me 6 to 7 years to come out of that. मेरे लिए ऐसा इसलिए था कि मैंने चीजों को रिसर्च करा, फाइंड किया कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन मुझे सोल्यूशन दे सकता है। Today when I meet my clients, I try and give them in a month or 2 months or 3 months, not beyond that. That's their choice if they would like to go ahead with me for more, and they love it, right? So all I want to say is that अगर आपने अपने लाइफ के अंदर इमोशनल और मेंटल इम्यूनिटी पे काम किया, ये मेरा वर्ड क्रिएटेड है, इमोशनल एंड मेंटल इम्यूनिटी को इनहेंस किया, तो लाइफ में फेलियर होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मिस्टेक्स होने बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, वो कोई भी हो। और कोई भी ऐसी कुदरत आपदा आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकती अनटिल अनलेस पृथ्वी पे कोई ग्रह गिरा और पृथ्वी नष्ट हो गई, तो वो बहुत अलग चीज है। उसके चांसेस कितने हैं? 100 में से 1%, 10%, but we can't live our life from there, right? But what happens to the incidences in our life and the stories which we have gone through in our life, we live like the life उसी पे डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर स्टोरी पे, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे। But what if I say that life is all about 90% what you create, 10% what it shows up is just 10%. And once you become a creator of your own life,
even you will start saying that 10 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ. You will say just 2 to 3% is something which happened to us, and how we respond towards it is 90 to 96 to 97%. So can you change this? You can change this. I can take 2 or 3 questions. It was a fabulous call. Thank you, Sagarji, for your question. Did I reverted your question? Hello, Mr. Sagar. Are you there? Yes, I am here. Answer of my question. Yeah, it was correct. Thank you. Actually, my wife is also listening to your conversation. Hello. And क्या नाम है उनका? Riddhima Agarwal. Hi, Riddhima. Lovely. Hi, if I could see both of you, that would be nice. I'd be very happy. Maybe some next time, because I am not using the Wi-Fi connection now. Maybe. Good to hear you, I would say. Yeah. Good to hear you. Yeah. Thank you. So, Riddhima, you have some question. Right now, I don't have any questions. Good. Anybody, if you have 1 or 2 questions, we can take, and probably we'll wait for the next call then tomorrow. Yeah. Deepshika, there's one question, See, I've been working on myself in line with the attunement with you for a quite long time now. But frequently my sleep disturbance is, comes and goes. So is there any excess remedy for it? Just ask the remedy. You don't need to point that out. This is XYZ remedy. Just ask me the remedy. Remedy is that remind yourself how much time am I operating from abundance. So you remember the tool I have shared, that abundance versus lack. Okay, when we operate from the state of lack, we're always fearful. Our sleep disorder will cultivate a lot. But when we operate our life from unconditional abundance, which is a practice, which is your brain and your emotional immunity has to be created, and you are on the way, you know that. You know very well you're on the way. Okay, you're there almost, you're on the way. So this will slowly, जब आपकी life के अंदर चीजें ठीक होती हैं, तो खराब भी एकदम नहीं हुई है, तो ठीक भी slowly होंगी. Financial resolve होंगे. Whenever I recognize now I don't have sleep disorder, it comes over me, and few days are gone like that. Wow. So the moment I acknowledge. You acknowledge. When you acknowledge, acknowledgement means कि मैं कहाँ से operate कर रहा हूँ. मैं abundance से operate कर रहा हूँ या मैं lack से operate कर रहा हूँ. Is it a abundant state or a lack state? See, simple बात है. You don't feel sleeping because you operate from lack. जब आप रात को सो रहे होते हो तो आप relaxed होने चाहिए. But instead of that, अगर मैं ये सोच रही हूँ, मेरा ये काम भी नहीं हुआ, मेरा वो काम भी नहीं हुआ, मेरा ये भी नहीं हुआ, मेरे को ये कह दिया, मुझे वो कॉल करनी है, मुझे वो कॉल करनी है, मेरे एम्प्लॉइज कैसे हैं, X है, Y है, तो नींद तो वैसे ही नहीं आएगी. बट अगर ये पैटर्न आप नोटिस करो, तो ये पैटर्न है लैक का, कि मेरी जिंदगी में ये भी काम नहीं करता. इनडायरेक्टली मैं अपने आप से क्या कह रही हूँ, ये भी काम नहीं करता, वो भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, ये भी नहीं करता. तो हर जगह मेरी क्या कॉन्वर्सेशन क्या है मेरे आपसे, मेरी लाइफ में कुछ भी काम नहीं कर रहा है. सो मैं अपने आप ही स्लीपलेस हो जाऊंगी. बट इंस्टेड ऑफ सेइंग इफ आई फॉलो द अबंडेंस state, I will say, thank you so very much. It's a beautiful thing. I acknowledge and I be in gratitude for all the things which has taken place, fall at place in the life. This is possible, my dear friends, when you live life in every second. And I'm going to discuss about this tomorrow. Whoever is interested listening, join me tomorrow again. So I'm going to talk there about is one very important reason is that, like, I have been on pills for quite some time, almost 3 years on sleeping pills. So when I want to break that, continuity of that, I'm able to break it for say 7 days or 10 days or 15 days. But somehow, and I'm not in lack now because I'm practicing abundance every day. What happens is somehow, I don't know, there is a period comes, I have no worries. There's no thought. There is no, any kind of anxiety. But still, I'll see that the sleep is not getting settled. And for the whole night, I'm just awake. I just go and read books. I do something else, but I'm not able to sleep. That's not a sleep disorder. That's your destruction. Like, यहाँ पे मेरे एक और client थे. कल मेरे से किसी client ने बोला, मेरा sleep disorder तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे को वो क्या है, Money East करके कुछ आ रहा है, आजकल series आ रही है. Everybody is watching that. So मेरे को ना वो देखने की आदत हो गई. तो अब मैं सोऊं कैसे? तो मेरे को वो तो एक अपने habit आज अगर मैं सोचूं कि मेरे को रात को एक प्रोग्राम देख के सोना है,
और एक के बाद दूसरी सीरीज तीसरी सीरीज मुझे टेम्प्ट कर रही है। तो अगर आपको अगर कोई किताब टेम्प्ट कर रही है, अगर आपको कोई सीरियल टेम्प्ट कर रहा है, अगर आपको कोई एक्टिविटी टेम्प्ट कर रही है, मेरी आपसे आदत है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि उस एक्टिविटी को वो ना करके ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी में डाल दो। ओके, सो आपको नींद अपने आप आ जाएगी। Hi, Deepshika. Hi, Amrita. Hi. You know, I must say, I never thought that I could go on a Zoom call every day for a particular thing. But with you, I look forward to each and every day Zoom call. And I asked Damini, okay, what's happening when? What is going on? You are amazing. And I believe you me, you're a rock star. You're fabulous. Superb. Thank you, Amrita. Job you're doing, and especially during this time, I think everybody needs you. Yes, you are definitely aware a of that, very which big is inspiration for us. Yes. It's great. Deepshika, what you're doing is going beyond everything. Fantastic. Well done. Thank you, Amrita. And I would like to share my little goal if everybody would like to listen. मैंने एक ये चीज सोची है कि जब मैं 60, मैं आपको ना इसके पीछे एक राज बताती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत सफर किया है। बहुत अच्छी फैमिली से मैं थी, बट कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने गलत इम्प्लांट डाले, स्टोरीज डाल दी, जैसे कि तुम बुद्धू हो, तुम पढ़ाई नहीं कर सकती, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम अगली हो, तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। मुझे देख के तो कोई नहीं बोल सकता that I'm not beautiful, right? But more than that, I have made that is my reality. That impacted my intimate relationship with the guys, that impacted my finances, that impacted and made me almost like a horrified, like a man, paise kamane ke liye. Until unless at the age of 22, around that period, I hit the game of transformation. Oh no, these are my stories and my point of views and all that stuff. And I'm very much sure I was that I need a coach. And when I was able to transform my life, at that moment only, it was in building in myself. I was a very good business coach, and I'm very good business coach as well. By the way, the people who don't know, let me tell you, I have around more than 40 companies I have transformed. But उसके अंदर पैसा तो था, लेकिन लोगों के साथ काम करके और लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, उसे बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन था. I was सिर्फ working for CEOs, उनके पैसे रेवेन्यू बढ़ा रही थी. I can still do that. I'm doing it with few companies. But ये जो है ना, ये जो टेस्ट है, ये जो लाइफ में है कि अमृता कुछ कह रही है एंड सुशील जी कुछ कह रहे हैं, अनिल कुछ कह रहे हैं, ये जो सुकून है, I got it when I became a life coach. तो मैंने एक मकसद लाइफ में पाला है कि कम से कम 1 लाख लोगों को कॉन्शियसनेस में डालना है बिफोर आई डाई. आई नो द नंबर वुड बी मोर बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6,000. आई हैव माय क्लाइंट डाटा विद मी. इट्स 6,000 राइट नाउ. वो वर्किंग विद मी ऑन रेगुलर वे. देयर आर क्लाइंट्स 2-2, 3-3 साल से मेरे साथ हैं कि कोई भी उनको सवाल का जवाब चाहिए. मैं खुद की भी ऐसा नहीं है, जब हम एक लाइफ कोच बनते हैं हम निरंतर प्रैक्टिस में रहते हैं. मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब मैं प्रैक्टिस नहीं करती, ऐसा कोई भी चीज नहीं होती, बिकॉज यू बिकम अ रिसर्चर. तो कोई भी चीज आपके पास आने से पहले आपके पास इसलिए जवाब होता है क्योंकि आप इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो, उनकी लाइफ के साथ डील कर रहे हो. तो जब आप इतने लेवल के, आप एज ज्यादा नहीं भी है तो आपकी मास्टरी हो गई उन एरियाज को सॉर्ट आउट करने में या अपने आप को सॉर्ट आउट करने के लिए. तो मुझे इंस्पायर अमृता वो चीज करती है. तो जब ये लॉकडाउन पीरियड भी हो रहा था, तो स्टार्ट विद द लॉकडाउन पीरियड, मैं ऑफिस से निकल रही थी और उस दिन मुझे किसी ने बोला क्लास करनी है. मैं लाइव क्लासेस भी करती हूँ, तो लाइव क्लास के लिए वो पर्सन आए, 2-3 लोग थे. और उसके बाद जब मुझे पता था कल से लेके लॉकडाउन कितना हुआ पता नहीं, एंड आई वाज इन क्वेश्चन व्हाट आई कैन डू मोर. सो सिंस देन दिस back to back series is all on 3,000 to 4,000 rupees I've been selling, जो 15-15, 20-20 हजार के प्रोडक्ट है एक क्लास. So only the reason is that how I can contribute in this quarantine period to everybody. अगर आप 15 दिन की एक सीरीज करते हो और उसके साथ साथ आपका मेंटल इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ रही है एंड आप अपनी इंटरनल लर्निंग पे काम कर रहे हो, आप घर पर हो, आपको कहीं नहीं जाना, कोई क्लास नहीं लेनी है, सिर्फ आप इसके साथ प्रोसेस के साथ इम्बाइब करो. How much will you grow as a person? You will be able to make the fuller utilization of this period, and I'm enjoying this period. I'm telling you, I'm not getting bored. Every day I have 6 to 7 sessions, and then this call. I have a call session till 10 p.m. kabhi.
तो बहुत मजा आ रहा है, मैं बिल्कुल भी बोर फील नहीं कर रही हूँ, और आपको अपनी लाइफ को फुल यूटिलाइज करना चाहिए, और वो तभी होगा माय डियर फ्रेंड्स जब जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगाएंगे। हम एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए भी नहीं लगा पाते क्योंकि हमें अपनी लाइफ का गोल डिफाइन नहीं होता। अपनी लाइफ का गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, अपनी लाइफ का गोल कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हो, शायद अभी क्लैरिटी भी नहीं है बहुत सबको। तो सो ट्राई एंड गेट दैट इन दिस 1.5 month, बिकॉज उसी के लिए हमारा जन्म हुआ। यूनिवर्स कुड गाइड मी टू व्हाट आई हैव बिकम, बिकॉज मैंने उसकी बात सुनी, मैंने अपने दिल की बात सुनी कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि मैं आपको एक राज बताऊं, ये नेचर अनकॉन्शियस लोगों का साथ नहीं देती है। नेचर पागल नहीं है, नेचर पागल बिल्कुल भी नहीं है। उसको अच्छे से पता है मुझे पैसा किसको देना है। आप इसको डेस्टिनी और भगवान भी बोल सकते हो, मैं नेचर बोलती हूँ, कॉन्शियसनेस बोलती हूँ। अगर आप कॉन्शियस बीइंग हो तो आपको पता है यू हैव बिल्ड योर मसल एंड नाउ यू विल कंट्रीब्यूट टू समबडी। नाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू समबडी, सो nature will give you back. Nature will give you a lot of money. Nature will give you great relationships because they know that you will not make it a misuse of it because you're a conscious being. So सिर्फ एक ही मैं आपको एडवाइस करूंगी, ASAP in your life, become a conscious being. Become conscious about your body, about your being, about your financials, about your relationships. And the key is that invest on yourself. Emotional and mental immunity को बढ़ाने पे invest करिए। इससे अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, because that goes to your soul level. I hope that helps you. So today's class helps you, and I'll try and bring more and more beautiful things for next few days. Anybody has some question can put it here, please. Deepshika, just do one thing next time. Now just send the link a little earlier, because then I can send it to people who I want to send it to. Damini, can you listen this? So Damini had called me up in the evening very late and she's like, "You're coming?" I said, yeah, I'm coming. But send me the link. Damini is a culprit, and you got to say to Damini. I don't think she's there. No, Deepshika. Yes. I want to tell, rather request you some. You जो भी call का schedule होएगा ना, please don't change, because on our call I make others to change their schedule. नहीं, इस कॉल का कोई भी शेड्यूल चेंज नहीं है, 9 बजे ही है। But then ID and password changes, right? No, I don't say this one. I say Deepshika, but the ID and password changes. Deepshika? hello. कल सुनना Was some interruption. Yeah. Tell So, me. but the ID and password changes every time, right? तो आवाज जातो नहीं. Yeah. Yes. It's not So the same. if you could just send me a little earlier in the day, then I can forward it to all my contacts here. दामिनी, आप क्या इसको सुबह दोपहर को भेज सकते हैं for all these people they love, and उनके love के लिए अनिल जी, सुशील जी, अमृता is there and they constantly want that contribution. So can you do that? Yes, ma'am. Thank you, Damini. So do that. I can take 1 or 2 questions, please. So Deepshika, one question to you. During this coronavirus time, I have created a platform called Strategic Networking. Now, the idea is great. The thought process is great. It's all about like equal voice opportunity for all, which means every person matters and every brand matters. Now, the people who call me up, they love the idea. They immediately send me their brand presentation. Right? But then I can't, in a sense, I wanted to ask you that whoever connects with me knows it's a perfect idea and they come on the Zoom call. But then how do I maximize the number of people coming on my Zoom call? Because this idea is something which nobody could ever think about in their life. How do you maximize it? That's a journey. You have started it now. When you will start giving a lot of value, people will choose you. Like you said that I love your session, you're a rock star. I know that's so natural. It's coming from, so when I give the value, people have to choose you because there is hardly anybody who's thinking about the value, my dear. मुझे पता है, I'm an authentic person. And even the people don't know this. So I'll tell you a very interesting story. There was a one healer from Bangalore. She wanted to choose certain session for her husband.
So she told me there was 2-3 coaches, and Deepshika, I went on your picture and did certain thing, and I found your energy is very expensive and you can contribute. She was not aware. She never spoke to me. Okay. This is truth. Energy can be read, but energy can, before energy, people can see the energy when you're highly contributing. So contribution and the value giving is an unconditional thing. It comes from unconditional perspective. When you are not living in black, like आपको अपने उसके लिए नहीं है, आप बस देना चाहते हो. Deepshika, Yeah. what Amruta is into what? I think some strategic networking she has started doing. She's a digital marketing person. Yeah. Okay. Yeah. Any other question I can take? Deepshika, during the coronavirus time, I have basically put all my energies and everything to strategic networking. Digital marketing is on hold right now because a lot of people are suffering a lot. People have shut down their businesses. Fashion designers can't do any photo shoots. Food caterers have shut down their kitchens. So digital marketing has gone in the backseat. And the entire focus now is strategic networking, where every person is a presenter. So all the energies are on strategic networking right now. I want to ask one question to Ms. Amrita. Yes. As you are into digital marketing, and I have some knowledge about it, so how we can collaborate, or we can talk to you so that No, we so can digital gain- marketing is on hold right now because Okay. the entire world is suffering right now. No, it is on hold. My focus, so I'm not doing digital marketing right now. Okay. My focus is to help maximum number of people in connect. Yes, sir. I with will their provide you prospective the number. customers. Don't worry. You can just connect to Damini. I'll provide you the number. and Makes details for sense. that. Right, sir? Hmm. So I understand this, Amrita, that you are trying to do something in your life which is very different from what you required. Is that people will have a taste of it. तो मार्केट में एक बिजनेस सेंस से मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि एक तो मार्केट के अंदर ना आपका एक वैल्यू क्रिएट होता है, आपकी एक इमेज होती है. जैसे मेरा एक बिजनेस कोच का इमेज है, राइट? फिर मैं एक लाइफ, तो लोगों को एक ही इमेज से लोग आपको देखते हैं. अगर आप इमेज चेंज कर रहे हो तो उसको होने में टाइम लगता है थोड़ा सा. But no, my question to you was that all the people who are connecting and calling me up, when I tell them the concept, they love it, and they immediately send their brand presentation to me. They immediately send me the brand presentation. But I want to, so maybe I think what I need to do is I need to maybe connect with everybody, whoever is in my strategic network. Hello. So I was just saying, Deepshika, that the people who are calling me up, when they hear about everything, they fall in love with the concept and they send me their brand presentations immediately. Okay. But I have got a lot of people on my group, on my broadcasting now, wherein I want everyone to participate. I think maybe to maximize my number, maybe I need to start calling them up and connecting with them. What do you think? Absolutely. I can, Amrita, set this a business question. We can take it separately if you Sure. are allowing. I can No help you worries. to do that up, right, at the business angle, because if something is not connected here and many people are here are looking forward to some. I can understand. Yeah. So you can book in session and we probably can talk about this. Definitely we can take this leap up. That's a very easy thing. It's not I'll talk to difficult. Damini about this. Then I'll connect with you. Yes, Sounds yes, good. you can Yeah. discuss with me or Damini. Anyone have a question about the topic we discussed? No form, no structure of any kind, and don't buy and tell stories. Can you tell us more about your workshop, what you're doing? Because just to get more in depth. Because Sure. maybe that's why I'm not registering to it. So one is, no, it's okay. So one of the concept which I love doing it is like he and she. And he and she is a kind of workshop where men understands women's psychology and the languages are very different. Even if your husband, wife, have you seen that what you say your wife doesn't understand? Your husband. So that's a relationship oriented workshop. It's beautifully combined in 15 days with 5 or 6 calls. You know, where I tell you the distinction and the tools very clearly, you implement in your life and you get instant result with your partner. So it's a very exciting thing. You understand in this program that you were failing in getting the response from your partner, but actually you were not doing the right thing. It's a beautiful thing is one.
So that series is going on, is about to finish. We'll start again. So upcoming series is 21 days limitless program. Okay. I spoke about the frequency in the universe. Okay. I exactly work in this program on this, that everybody understand the frequency. So I know everybody after me talking about frequency had this question that what is this frequency we're talking about, that if we get aligned with, we can start getting results in life. So you will get the tool 21 days, 21 rules of raising your frequency. Again, the cost of the workshop is very, very, very less. It's around 4,000 rupees. You can just register. Third series which I'm starting is divorceless relationship, which is exactly work on your internal world and your relationship with yourself. Why it is divorceless relationship? Because you get divorces in life and breakups because you're not connected to your own being. If you learn to connect with your own being, it's very easy to connect with your partner or with any relationships, whether it's client relationship, your own relationship. Your relationship to yourself has to be divorceless. But you know, maximum of the human being जो होते हैं वो divorceless state से work नहीं करते. अपने आप के साथ ही रिश्ता नहीं होता. और आप जब तक अपने आप से रिश्ता मजबूत नहीं करते, बहुत इसका मतलब ही यही कि आपकी इमोशनल मेंटल इम्यूनिटी कम है. सो मेरे जितने भी वेबिनार सीरीज हैं वो सब कुछ बेहद इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल है. और ये 15-15 हजार के प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त क्वारंटाइन पीरियड में मैं 4,000 के वी आर सेलिंग इट. इफ यू आर द पर्सन हु टुक माय सेशन अर्लियर, लेट्स जैसे कि अनिल जी हैं, ही शी सीरीज करिए, तो 4,000 की वर्कशॉप वो 3 में ले सकते हैं. सो मतलब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो ज्यादा है, बट हम क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे कर सकें और वेबिनार्स की फॉर्म है, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, रात को 10 बजे 9 बजे आप सब चीजों से फ्री हो जाते हैं. सो ब्यूटीफुल ही है. मैं इसलिए कम कॉस्ट पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप लाइव सेशन करते हैं तो मुझे बहुत पूरे दिन का शेड्यूल मेंटेन करना पड़ता है, राइट. बट यहाँ मुझे पूरे दिन का शेड्यूल मेंटेन नहीं करना, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे का हम वर्कशॉप कर रहे हैं. जब हम पूरा दिन लगाते हैं तो वही 7 घंटे का वर्कशॉप होता है. यहाँ पर भी हम 5 या 6 कॉल में 7 घंटे का वर्क ही करते हैं. आपको पूरा वैल्यू मिल रहा है कम प्राइस में अपने घर पे. सो टेक द बेनिफिट. एंड अमिता ऑल्सो यू आस्क्ड द क्वेश्चन, दामिनी ने, मैं अभी देख रही हूँ लिंक भी शेयर कर दिया है. So for 21 days series है 3,000 rupees की and divorceless is 4,000 rupees. So you can take the benefit and you can register for it. Limitless Freedom is an amazing course, is in 3,000 rupees and divorceless relationship is 4,000 rupees. So that's just a beginning program. They are those series where people can just change their world and initial level of work and can get a specific results. A part of that, I do live programs also. I make people certified coaches also. So that's a different story. पहले आप एक जर्नी में स्टार्ट कर लीजिए अपनी जर्नी, और उसके बाद इसके अलावा आप पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं जहां आप चाहते हैं मैं पर्सनली आपके साथ आपकी लाइफ में काम करूं. जैसे अमृता आपने जो क्वेश्चन पूछा बिजनेस से रिलेटेड विद पर्सनल कोचिंग डोमेन का क्वेश्चन है, या सुशील जी ने आज पर्सनल कोचिंग सेशंस बिजनेस के लिए बोला कि मुझे चाहिए, तो मैं बिजनेस को लेके भी पर्सनल कोचिंग सेशन करती हूँ. आपकी लाइफ में अगर आपके रिलेशनशिप अपनी लाइफ में सेल्फ वर्थ इशू से आप कुछ आप वहां पर सफर कर रहे हैं, रिलेशनशिप में कर रहे हैं, उसके पर्सनल कोचेस भी होते हैं. तो हर तरह की लर्निंग है. अगर आपने पर्सनल सेशन नहीं लेना, आप ग्रुप कोचिंग जो होती है स्मॉल कॉस्ट में, वो भी ले सकते हैं. I have a question to ask you, Deepshika. Since you talk so much about abundance, which I'm totally in sync with you. Abundance is everywhere as long as you can tap into it. Now, having said that, I just want to ask, you have a group of say about 58 people or say 100 people or 200 people. If supposing a particular person says that I've got abundance, which means that if you've got abundance, then all the people on your group should come on the Zoom call. Means? So for example, if there's this person, if there's an X person who says that I've got abundance and abundance and abundance. Now, abundance means he or she has got abundance of everything, right? So if he or she has say 250 people or 200 people or 150 people on their WhatsApp group, then that person should be able to get all those people on a Zoom call. Why can't he or she? Then you can't claim I've got abundance. No? If supposing there's a particular person, he says I've got abundance. पहली बात तो abundance एक experience है, बात नहीं है,
ठीक है, जब हम बात करते हैं कि मुझे abundance मिली है, तो नहीं मिली नहीं है, हम उसको लेके एक्साइटेड है, अट्रैक्ट है, हम हाफ वे हैं, ठीक है। तो वो बोलना भी बुरा नहीं है। सी abundance का मतलब क्या होता है, आप ईज के साथ पैसा कमा रहे हो, आप लोगों से मांग नहीं रहे हो। मेरे लिए abundance क्या है, मैं बिना क्लाइंट को बोले अगर क्लाइंट मेरे से सर्विसेज लेना चाहता है, means I Right. have created enough value for my clients, that's an Makes abundance sense. for me। अगर आप फाइनेंशियली पूछो, मुझे abundance in just बताओ, relationship, किसी के पास अगर abundance हो तो वो दीपशिका, अपने सारे लोगों को Zoom call के ऊपर ला सकते हैं? Just ask. दीपशिका, क्यों नहीं ला सकता? It's very easy, yeah, दीपशिका, what it's I'm very telling, easy। ये देखो, subconsciously into abundance, but not vibrating at that frequency. It itself is what she is Yeah. asking. No, see, that's what I'm saying, that Amrita, that when you are saying means you're not vibrating, क्योंकि जो vibrate करेगा abundance को लेके वो बोलता नहीं है। Right. मेरा Right. कहने का मतलब कुछ और है। मैं आपसे चीज पूछ रही हूँ। आप मुझसे क्या चीज पूछ रहे हो कि Person है। अगर मेरे पास abundance है तो क्या मैं 240 लोगों को, 250 लोगों को Zoom call पे ला सकती हूँ? Right. बिल्कुल ला सकते हो, बहुत easy है। तो क्यों नहीं आते? आपके नहीं, आपकी- talking in general outside, not about you. किसकी talk about a specific person, क्योंकि हम जनरल बात करेंगे तो सबकी फ्रीक्वेंसी, सबकी बात अलग है। लोग कई बार Zoom call रख लेते हैं। I've seen many coaches, they don't follow their own schedule. Really? Do you need to ask me? You see people all around the world are non-committed to their own thing. But I So can't they- imagine a trainer doing that. I can't so, okay. imagine a trainer doing Amita, that. I am not here talking about, if there is a not specific person, we're not going to talk. You got to either talk it is about XYZ person या आपके बारे में या किसी के बारे में। Okay, let's talk about me. I हाँ. feel I have a lot of abundance. I really feel I've got a lot of abundance because I think I'm also हाँ, अब बात पे आए आप। person. So अमृता, आपने एक नया डोमेन चूज किया है, उसके लिए आपकी अवेयरनेस नहीं है। अबंडेंस तो है, अवेयरनेस ना होना बहुत अलग चीज है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ ही एंड शी सीरीज के बारे में, तो कोई बहुत ही रिच कपल जिसका रिलेशनशिप नहीं है आपस में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, उनको वो रूल सीख रहे हैं, रूल सीखते ही वो फिक्स अप हो जाती हैं चीजें। आर यू गेटिंग मी? तो आपकी लाइफ में इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मिसिंग क्या है? इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको अपना जो वेबिनार सीरीज है वो कैसे चलाना है, ये मिसिंग है। उसके लिए आप कोचिंग ले लो, you'll be at that state 100%. I promise. Yeah. So Sandeep, you have asked, I appreciate if you can send the link for tomorrow's webinar. Sandeep, आप ना एक बार नंबर दिया हुआ है, दामिनी को कनेक्ट कर दीजिए। Wherever, whatever the group you are into, you will get the link there, because every day the schedule gets changed, right? So she might have not created the link right now, but she'll send it, and she will ensure to send it to everybody by 4 p.m. tomorrow, by 3 p.m. Makes sense. Okay. Because then you can forward it to other people. Yes. So anything else I can help you with? So beautiful questions you brought it. Thank you for your contribution. All I request, I'm going to make it more and more exciting. आप join कर सकते हैं, लेकिन provide your presence on webinar. And when you provide, see, if this would have been a live class, you could not afford to hide your faces. So why we have to hide? Hiding faces means you're not willing to receive. That's the universe says that. So be willing to see and practice. Call more and more people tomorrow. We will be excited to see you again. Thank you. Thank you so much, Deepshika. Wonderful to learn and And get who's your, insights from you every time. thank you. Fantastic.